خبروں کی تفصیلات شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں، خبردار ہوشیار، حکومت عوام پر ایک بار پھر پیٹرول بم گرانے کے لیے تیار۔ سمری وزیر اعظم آفس کو موصول ہو چکی ہے۔ وزیر اعظم نے سمری واپس بھجواتے ہوئے نئی سمری تیار کرنے کی ہدایت بھی کر دی۔ سر پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے سر ادھر سے جائیں سر ادھر سے $95 کے پہنچ گیا تو اب کیا کریں؟ کتنا مہنگا ہو رہا ہے؟ دفعہ جو ہے وہ بلکہ بالکل بڑھا ہی نہیں، لیکن ابھی تو آج کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ بڑھے گا سر؟ کتنا سر بڑھا رہے ہیں؟ یہ اب تمہیں رات کو پتہ چل جائے گا سر۔ یہ انکم ٹیکس کا لا جو ہے یہ کب تک بل لا رہے ہیں؟ جو ہے سائن نہ کرتے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں پیٹرول کی قیمت میں اضافے کا فیصلہ کابینہ کا نہیں ہوتا، یہ حالات پر منحصر ہوتا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھیں گی، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ شوگر ایڈوائزری بورڈ سے متعلق حتمی فیصلہ نہیں ہوا، NIHRC کو تحلیل کر دیا گیا۔ کابینہ نے آرمڈ فورسز کی 15% تنخواہوں میں اضافے کی منظوری بھی دے دی ہے۔ یہ کابینہ کا فیصلہ نہیں ہوتا، یہ فیصلہ جو ہے یہ تو جو ہے وہ ایک فائنانس منسٹری کا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن جو اس وقت حالات ہیں اس میں ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ کیا چارہ ہوگا کہ آپ پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ بڑھائیں گے۔ آج کابینہ نے 15% جو سیلری انکریز کی تھی، پرائم منسٹر صاحب نے بلوچستان میں اعلان کیا تھا، جو سول آرمڈ فورسز کی اس کی جو ہے وہ منظوری دی ہے، اور اسی طریقے سے جو وفاقی حکومت کی 1 تا 19 تک کے ملازمین ہیں ان کے لیے بھی 15% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس جو ہے وہ اپروو کیا گیا ہے۔ 20 کروڑ کا ملک اور ٹیکس دہندگان صرف 20 لاکھ۔ وزیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں ٹیکس نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ دنیا میں ٹیکس کے بغیر کوئی نمائندگی نہیں ملتی، کوئی ٹیکس نہیں دیتا۔ کوشش کر رہا ہوں کہ ٹیکس نظام میں غیر متعلقہ ٹیکسز ختم کروں۔ اسلام آباد سے کامران چودھری کی رپورٹ دیکھیے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں پوائنٹ آف سیلز کے تحت دوسری قراردادی کی تقریب۔ وزیر خزانہ شوکت ترین کا کہنا تھا دنیا میں ٹیکس دیے بغیر کسی کو کوئی نمائندگی نہیں ملتی۔ ملک میں 20 ٹریلین کے سیل ٹیکس جبکہ 3 سے 3.5% محصولات ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ ٹیکس نہیں دیتے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین FBR ڈاکٹر اشفاق احمد کا کہنا تھا کہ انعامی اسکیم کا مقصد قومی ذمہ داری کا احساس دلانا ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہر شخص ذمہ داری کے ساتھ ٹیکس ادا کرے۔ انعامی اسکیم دراصل آپ کو اپنی قومی ذمہ داری کا احساس دلانے کا ایک طریقہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ٹیکس کے حوالے سے باشعور ہو جائیں اور اپنی قومی ذمہ داری ادا کریں۔ انعامی تقریب میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے 1007 خوش نصیبوں کو 5000 سے لے کر 10 لاکھ روپے تک کے انعامات سے نوازا گیا۔ دوسری قراردادی کے تحت 10 لاکھ روپے کا پہلا انعام محمد اسلم نے جیتا۔ چیئرمین FBR اور وزیر خزانہ کی جانب سے انعام جیتنے والوں کو مبارکباد بھی دی گئی۔ آئین کا تیسرا عنصر ملک کا وفاقی نظام۔ صدارتی نظام ڈکٹیٹرشپ کی علامت ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے صدارتی نظام کی باتیں پاکستان کو تقسیم کرنے کی کوشش قرار دیا۔ کہتے ہیں پارلیمانی طرز حکومت کا مطلب صدارتی نظام نہیں چلے گا۔ عوام نے تاریخ میں کبھی ایسے دن نہیں دیکھے۔ ملک کا وفاقی نظام ہے اور اس کے نیچے وحدتوں کی حقیقت کو تحفظ فراہم نہیں کریں گے، یہ ملک یکجا نہیں رہ سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں کوئی صدارتی طرز حکومت نہیں چلے۔ وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فاروق حبیب کہتے ہیں مولانا کو اپنے حلقے میں عدم اعتماد کا سامنا کرنا پڑا۔ جس بندے کو کوئی گھر میں قبول کرنے کو تیار نہیں، باہر کون کرے گا؟ مخالفین سن لیں، مقابلہ کریں گے اور ڈٹ کے کریں گے۔ مہنگائی صرف ہمارا نہیں پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ خان سے بھی ان کے اوپر بار بار عدم اعتماد آ رہی ہے۔ 2018 میں بھی اب دوبارہ پھر بلدیاتی انتخابات میں بھی ان کو مسترد کر دیا۔ اس بندے کو کوئی گھر میں قبول کرنے کو تیار نہیں ہے تو اس کو باہر کون قبول کرے گا؟ یہ اصل معاملہ ہے ان کا۔ اور بات یہ عدم اعتماد انہوں نے کیا کرنی ہے، پہلے یہ اپنے 25-30 لوگوں کا تو فیصلہ کریں نا۔ جو ہر بار کوئی بل آتا ہے اسٹیٹ بینک کا ہو، کوئی عدم اعتماد آتی ہے تو وہ سینٹ ہو، قومی اسمبلی ہو، وہ ان کے اوپر ہی عدم اعتماد کر دیتے ہیں، وہ ہی غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ پہلے ان کی فکر کریں۔ حکومت بھی قائم ہے، حکومت کے اتحادی بھی قائم ہے۔ عمران خان نہ صرف یہ 5 سال پورے کریں گے، اگلے 5 سال بھی انشاءاللہ جو ہے پورے کریں گے۔
बिलावल भुट्टो जरदारी ने अवामी मार्च के रूट प्लान की मंजूरी दे दी है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहते हैं अवामी मार्च कराची से 10 दिन में 34 मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ इस्लामाबाद इस पहुंचेगा। हवाले से मजीद बात कर लेते हैं अब्दुल कदीर राना से। जी अब्दुल कदीर राना, क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से आपके पास? देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो 27 मार्च को लॉन्ग मार्च किया जा रहा है वफाकी हुकूमत के खिलाफ, उसके प्लान की मंजूरी देते हुए ये जो है 10 रोज में इस्लामाबाद पहुंचेगा। इसका जो पहला दिन है वो कराची से जो है बदीन पर इख्तिताम होगा। दूसरा रोज जो है मोरो मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ हैदराबाद, हाला, नवाबशाह से होता हुआ मोरो पर, और 1 मार्च को जो है ये सखर में पहुंच जाएगा। इसके अलावा 2 मार्च को ये रहीम यार खान पहुंचेगा, और इसके अलावा मुल्तान में जो है 3 मार्च को ये लॉन्ग मार्च पहुंच जाएगा। उसके बाद 4 मार्च को साहिवाल में जो है इसका पड़ाव होगा। सही, बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर राना। पेट फाड़ कर दौलत निकलवाने के नारे लगाने वाले एक दूसरे के साथ मिल गए। शाह महमूद कुरैशी के ऑपोजिशन पर तंजियावार कहा, लोग अपने मफादात की खातिर सियासी मौकिफ में तब्दीली ला रहे हैं। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान को घबराहट सियासी मुलाकातों से नहीं, मुल्क की तबाही से है। हुक्मरानों ने मईशत और मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। रिकॉर्ड कर्जे लेने के बावजूद अवामी फलाह के काम नहीं किए गए। रहनुमा नून लीग शायद खान अब्बासी ने कहा है कि हुकूमत टेलीफोन कॉल्स पर खड़ी है, इत्तेहादियों से मामलात तय हो गए हैं। मईशत का बुरा हाल, हुकूमत इंतकाम की सियासत भी कर रही है। बलूचिस्तान में भी कप्तान के खिलाड़ी पार्टी क़यादत से नाराज। रुकन बलूचिस्तान असम्बली और पीटीआई के मरकजी रहनुमा सरदार यार मोहम्मद रिंद कहते हैं पार्टी के बाज़ मरकजी कायदीन बलूचिस्तान में मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस। ब्रेक का हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिजीन को खत लिखकर मेडिकल रिपोर्ट तलब करने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत डॉक्टर लॉरेंस और डॉक्टर शॉल को खत लिखेगी। दोनों डॉक्टरों को खत लिखकर नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स तलब की जाएंगी। नैब ने मेगा करप्शन करने वालों के गिर्द घेरा तंग कर लिया। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 2 रेफरेंस और 6 इन्वेस्टिगेशंस की मंजूरी दे दी। FBI अफसरान के खिलाफ भी रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी गई है। साबिक वजीर खजाना हफीज शेख को भी मुल्ज़मान में नामजद किया गया है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ, जिसमें 2 रेफरेंस और 6 इन्वेस्टिगेशन समेत मुतअद्दिद इंक्वायरीज की मंजूरी दे दी गई। नैब ने FBI अफसरान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी। मुल्जिमान पर कौमी खजाने को $11 मिलियन का नुकसान पहुँचाने का इल्जाम है। साबिक मुशीर खजाना हफीज शेख, साबिक सेक्रेटरी खजाना सलमान सिद्दीक, साबिक चेयरमैन अब्दुल्ला यूसुफ, आशिर अजीम मुल्जिमान नामजद किए गए। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरिगेशन मुल्तान राना अफजल और दीगर के खिलाफ बदउनवानी का रेफरेंस दायर होगा। रुकन कौमी असम्बली बरजेस ताहिर, ठेकेदार सलीम गुराया, जियो मास्टर प्राइवेट लिमिटेड की इंतजामिया, EOBI की इंतजामिया, बैंक ऑफ पंजाब के अफसरान के खिलाफ तहकीकात की मंजूरी दी गई। गुल हसन चना, अब्दुल रज़ाक कुरैशी, साबिक सेक्रेटरी रेवेन्यू के खिलाफ भी तहकीकात की मंजूरी दी गई। PSO के खिलाफ इंक्वायरी मजीद कार्रवाई के लिए मुतल्लका महकमे को भेजने की मंजूरी दी गई। इजलास में स्पीकर बलूचिस्तान जाम मोहम्मद जमाली के खिलाफ तहकीकात बंद करने का फैसला भी किया गया। पाकिस्तान में थोड़ी गुर्बत कम हुई है, जिसे कामयाबी समझता हूँ। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं रकूम की मुंतकली डिजिटल तरीके से तेज और सहल होगी। UNDP रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में गुर्बत कम हुई। हमें खैबर पख्तूनख्वा में इसलिए वोट मिले क्योंकि हमने वहाँ गुर्बत कम की। आम आदमी की सहूलत है। पख्तूनख्वा के अंदर जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो 5 साल के बाद जब हमें 2/3 अक्सरियत मिली, उस सूबे ने दी जो दूसरी बारी भी नहीं देता। UNDP की रिपोर्ट आई तो उन्होंने कहा जिस सूबे में सबसे तेजी से गुर्बत कम हुई थी वो पख्तूनख्वा था। तो हमें वोट इसलिए मिली थी कि वहाँ हमने गुर्बत कम की थी। अब हमारी असेसमेंट की जाएगी। मैं सिर्फ एक चीज़ देखूंगा कि क्या हमारे दौर में पाकिस्तान में गुर्बत कम हुई, अगर खुशहाली हुई तो क्या खुशहाली का फल नीचे तक गया, और अगर मैं इसको कामयाबी समझूंगा कि अगर हमने लोगों को गुर्बत से उठा लिया। काबीना ने पाकिस्तान की पहली डिजिटल क्लाउड पॉलिसी की मंजूरी दे दी। पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल और ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी अदालतों की मंजूरी भी दे दी गई है।
वजीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना की बड़ी बैठक पर्सनल डाटा प्रोडक्शन बिल का मुसव्वदा मंजूर कर लिया। बिल का मकसद शहरियों और सरकारी और निजी इदारों के ऑनलाइन डाटा की प्राइवेसी यकीनी बनाना है। ये बिल पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद एक्ट बन जाएगा। काबीना ने पहली डिजिटल क्लाउड पॉलिसी की मंजूरी भी दे दी। पॉलिसी सरकारी इदारों में डिजिटल डाटा के बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक एक जगह पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए बनाई गई है। समुंदर पार पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए खुसूसी अदालतों के क़याम की असूली मंजूरी भी दे दी गई। वज़ीर इत्तलात के मुताबिक इन कवानीन और अदालतों के क़याम से समुंदर पार पाकिस्तानियों के मलकियती मुकदमात जल्द निपटाने में मदद मिलेगी। काबीना ने वजारत कानून की सिफारिश पर लॉ एंड जस्टिस कमीशन में तैनातियों की मंजूरी दे दी। माशी इस्तेहकाम के लिए जारी करदा बैनुल अक़वामी बॉन्ड्स की मुद्दत में तौसी करने की भी मंजूरी दे दी। जहां पर लेंगे एक ब्रेक, साथ रहिएगा। यौम विलादत मौला कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की मुनासबत से लाहौर में सीरत अली इब्न अबी तालिब अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसकी मेज़बानी आलमी अमन इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान ने की। तफसीलात जानते हैं नबील नकवी की इस रिपोर्ट में। लाहौर में यौम विलादत बासादत मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम की मुनासबत से सीरत अली इब्न अबी तालिब अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिसमें तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा कुराम ने शिरकत करके बारगाह इमामत में नजराना अक़ीदत पेश किया। कॉन्फ्रेंस के मेज़बान आलमी अमन इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान के चेयरमैन इलामा मुश्ताक हुसैन जाफरी का कहना था कि अली उस आफ्ताब को कहते हैं जो हमेशा से बुलंदियों पर रहा। जिसके मुकद्दर में अल्लाह ने बुलंदियाँ ही बुलंदियाँ लिखी हों, आज का दुनियादार उसको कैसे बस कर सकता है? सुभान अल्लाह। आज किस हस्ती का हम जिक्र कर रहे हैं जिनके घर से हमें वहदत मिलती है, जिनके घर से हमें इत्तेहाद मिलता है, जिनके घर से हमें रवादारी मिलती है। सीरत अली इब्न अबी तालिब कॉन्फ्रेंस में मुकर्रीन ने जब फ़ज़ाइल मौला अली अलैहिस्सलाम पर रोशनी डाली तो फिजा नारों से गूंज उठी। चेयरमैन अल खुमैनी ट्रस्ट आगा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी का कहना था कि अली मौला के औसाफ पढ़ना बशर के बस की बात नहीं, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि उम्मत के वहदत को ना टूटने दिया जाए। अली मौला के औसाफ बयान करना किसी बशर के बस में नहीं कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाए कि अली रब तआला की मार्फत या मुझे है या आपको, और मेरी मार्फत मैं किस शान का मालिक हूँ, या मेरा रब रहमान जानता है, या ए अली तू अल्लाह का तर्जमान, अल्लाह की वही का तर्जमान जानता है। अमन कॉन्फ्रेंस में मुंतज़मीन की जानिब से आगा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी समेत दीगर मेहमानाने गरामी को अमन शील्ड से भी नवाजा गया। कैमरामैन मोहम्मद अहमद के साथ नबील नकवी, सच न्यूज़ लाहौर। हाजिर होते हैं कुछ ही देर में। देखते रहिए सच न्यूज़।